Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. In this video, I will discuss last 6 months one-liner important current affairs for the exam of Patent Examiner CGPDTM. And before that, I would like to discuss this important GK section. Since we are celebrating 75 years of independence, so the important constitutional developments become important for from the point of view of general knowledge or general studies. So let's have a look before the current affairs. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, उसने सबसे पहले जो एक्ट लाया था फॉर कंट्रोलिंग द गवर्नेंस इन इंडिया, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या थे कि इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन बनाया था एंड दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774. और उस सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट जज थे वो थे एलिजा एम्पे. First Chief Justice was Elijah Ampe. It was established in 1774 and its structure was one Chief Justice and 3 other judges. This act also created a post of Governor of Bengal. Created post of Governor General of Bengal by converting Governor of Bengal. तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? सर वॉरेन हेस्टिंग्स. Warren Hastings was governor of Bengal from 1772 to 73, and then he became the governor general of Bengal from 1773 to 1785. And the governor general executive council has 4 members. So the structure was one governor general of Bengal, this plus 4 other members. This whole comprises the governor general executive council. Next important act was Pitt's India Act 1784. Direct name can also be asked. So there were some glitches in the Regulating Act 1773. To remove that glitches, British government या British Parliament came up with this Pitt's India Act 1784. This established a dual system of government in India. And under this dual system of government, BOC, that is Board of Control, and COD, that is Court of Directors Office, these 2 offices were created. And the work of COD, Court of Directors, was to look at the commercial section of the company, and Board of Control का काम क्या था? To look at the administrative section of the company with respect to the India. Sorry. And this act also reduced the 1 member in the Governor General Executive Council. So the structure that was earlier 4+1, now it has been changed to 3+1. This act, after this act came the Charter Act 1773. इस एक्ट ने क्या किया कि जो कंपनी की मोनोपोली थी एशिया की कंट्रीज में, which was given by the Magna Carta, by the British king to the company, East India Company, that was again extended by 20 years. और जब ये चार्टर एक्ट 1773 आया था तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे. ये 2 ही पॉइंट इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट थे 1773 में. आफ्टर दैट चार्टर एक्ट 20 साल के लिए बढ़ाया था, तो 1773 प्लस 20 तो 1813 आ जाएगा. तो नेक्स्ट केम चार्टर एक्ट 1883. इसमें क्या था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको दैट वाज एबॉलिश्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस एक्सेप्ट, ये 2 एक्सेप्शंस रख के और सारी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था. एक्सेप्शंस क्या थे कि ट्रेड विद चाइना में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और ट्रेड इन टी में, चाय की ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, और ट्रेड विद चाइना में. दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोविजन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट द गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी to spend 1 lakh per annum on the education. 1 लाख रुपए 1 साल में खर्च करना था एजुकेशन पे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था. और अलाउ कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो इंडिया में आए, जहाँ पे ब्रिटिश रूल है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाएं.
इसके बाद इम्पोर्टेंट एक्ट था एक्ट ऑफ 1883, चार्टर एक्ट ऑफ 1883. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट. इट इज चार्टर एक्ट 1883 which is known as Saint Helena Act. This abolished all the monopolies of the East India Company with respect to trade. And this act also converted renamed the office sorry this also renamed the Governor General of Bengal, converted the Governor General of Bengal as the Governor General of India, and the first person to become the Governor General of India was William Bentinck. He was also the person who abolished sati in 1829. And this act established one law commission that was the first law commission of India before the independence. That was Lord Macaulay Commission, first law commission before independence. इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853. ये जो एक मेंबर थे लॉ कमीशन में बना कि एक मेंबर जो बनाए गए थे टू गिव सजेशंस ऑन द इंडियन लॉज, तो ये फुल टाइम मेंबर बना दिए गए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके. एक ये हो गया. दूसरा था कि पहली बार इस एक्ट ने लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब इंडियंस को अलाउ किया इन द वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया लोकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इस काउंसिल में. और यहाँ पे एक पॉइंट भूल गया कि इसी एक्ट ने प्रपोज किया था इंडियन सिविल सर्विसेज 1853 के द्वारा ही इंडियन सिविल सर्विसेज रिटन एग्जाम लाया गया था. ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये कब आया था? 1857 की क्रांति के बाद, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसने क्या किया कि अबॉलिश कर दिया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसको, और इस्टेब्लिश क्या किया 15 मेंबर इंडिया काउंसिल, इसको इस्टेब्लिश किया. और एक ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओसी को भी इस्टेब्लिश किया. और रीनेम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको वायसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे. इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट की सीरीज आई जिसमें 3 एक्ट आए थे. फर्स्ट वाज इन 1861. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था कि डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट में. एक मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट का हेड होता था और वो उसका इंचार्ज मतलब इंडिपेंडेंट होता था उसमें अपना काम करने के लिए. दूसरा आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज किया गया, लेकिन इलेक्शन वर्ड कहीं मेंशन नहीं किया गया. फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इन 1892. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया 109. इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं. इसमें पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था. इस एक्ट ने ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया इंडिया में. इसलिए मिंटो जो है who was the viceroy at that time, he is known as the father of communal representation in India. फर्स्ट टाइम इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मौका मिला, मतलब उनको मिनिस्ट्री का भी इंचार्ज दिया जाने लगा. और जो फर्स्ट इंडियन थे टू बिकम ए मिनिस्टर वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दैट इज एसपी सिन्हा. इनको लॉ मेंबर जैसा इंक्लूड किया गया. सॉरी. Next important act was Government of India Act 1919. This was based on Montague-Chelmsford reform. और इसने क्या किया कि जो प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया. डायरकी में क्या होता था कि जो सब्जेक्ट्स होते थे गवर्नेंस के उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाने लगा, रिजर्व कैटेगरी एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरी. इन रिजर्व कैटेगरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे और ट्रांसफर्ड में थोड़ा कम इम्पोर्टेंट वाले होते थे. इम्पोर्टेंट मतलब फॉरेन अफेयर्स हो गया, फिनांस सेक्शन हो गया, ऐसे वाले इम्पोर्टेंट होते थे. और इसी एक्ट ने बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस किया.
बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउस, जैसे कि अभी लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, तो इसी तरह बाइकैमरलिज्म उस टाइम आया और इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और इंक्रीज कर दिया। जो अदर सेक्शंस थे उनको भी, जैसे सिख थे, एंग्लो इंडियन थे, इनको भी कम रिजर्वेशन दिया जाने लगा। और इसी एक्ट ने अलाउ किया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो अब इंडिया में भी हेल्ड हो। इसके पहले क्या होता था कि whoever wants to appear in this ICS एग्जाम उसको इंग्लैंड जाना पड़ता था और वहां पे एग्जाम देना पड़ता था, रिटन एग्जाम। बट नाउ दिस एक्ट अलाउज साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंग्लैंड एंड इंडिया बोथ। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था 1920 में। दिस इज द रीजन दैट इन द अर्लियर period after independence, Allahabad was hub for the civil services preparation. Though now it is Delhi, but earlier it was Allahabad. Last important act was Government of India Act 1935. इसने क्या किया कि डायरकी को प्रोविंसेस से अबॉलिश कर दिया और सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी ने प्रपोज किया था फेडरेशन फॉर्मेशन का, बट दैट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। So from constitutional development point of view, these are the important acts and their provisions. After that, let's start the current affairs section. Before that, I would like to request that please go through the quiz in the community section. That will help in the revision of the current affairs, especially the one-liner current affairs. As in the 2015 and 2018 patent examiner paper, the current affairs were based on one-liner current affairs. So here I am also with the one-liners itself. Now let's begin. In the GI tag video, कुछ GI tag रह गए थे, and I have added those in this video. रामबन अनार दाना, इसको GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर से। देन मुश्का बुज्जी चावल, ये एक राइस है, इसको भी जम्मू एंड कश्मीर से ही GI टैग मिला है। भदरवाह राजमा, इसको भी जम्मू एंड कश्मीर से मिला है GI टैग। देन ऊटी वारकी, ये ऊटी वारकी को GI मिला है फ्रॉम तमिलनाडु। रामनगर भरता, इसको GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश से। ये भरता ये एक टाइप का बैगन है, इसको GI टैग मिला है। डिंडोरी गोंड पेंटिंग, इसको मध्य प्रदेश से GI टैग मिला है। रामबन सुलाई हनी, शहद है ये एक टाइप का, इसको जम्मू एंड कश्मीर से मिला है GI टैग। नाउ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड दैट व्हिच group has imposed ban on gas diesel cars from 2035। तो यूरोपियन यूनियन ने डीजल और गैस की कार्स पे बैन कर दिया है। कब से? 2035 से वहां पे गैस और डीजल की कार नहीं चलेगी। इंडियन रेलवे ने अपना टारगेट रखा है नेट जीरो इमिशन का। कब से? बाय 2030। तो इंडियन रेलवे का नेट जीरो इमिशन कब टारगेट है कि 2030 तक वो नेट जीरो अचीव कर लेगा। 2021 का गांधी पीस प्राइज, दैट इज गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू गीता प्रेस। दिस गीता प्रेस इज बेस्ड इन गोरखपुर। गोरखपुर यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नाउ फ्यू नेम्स हैव बीन चेंज्ड, लाइक द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर किया गया है बदलाव। सो a question might be that the scheme Beti Bachao Beti Padhao has been renamed as Badlav, and Swachh Bharat Abhiyan has been renamed as Sundar Bharat. अभी अगस्त में कुछ नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट में, that are related with the Indian Penal Code, CRPC and Evidence Act. इनके प्रोविजंस के बेसिस पे क्वेश्चन मतलब बहुत प्रोबेबल नहीं है, बट द नेम कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड 1860, इसका नया नाम क्या किया जाएगा? अभी ये प्रपोज्ड बिल है। भारतीय न्याय संहिता, CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 का,
उसका नाम विल बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एविडेंस एक्ट 1872 का जो है उसका नाम बदलकर किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल। नाउ इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बना है? वो दिल्ली में बना है ई वेस्ट इको पार्क। इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क दैट इज इन केरला। इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला में बना है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक सर्वे किया था एंड इट फाइंड आउट दैट मैक्सिमम वाटर बॉडीज कौन से स्टेट में है? इट इज इन वेस्ट बंगाल। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। नेशनल क्वांटम मिशन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो नेशनल क्वांटम मिशन 8 साल के लिए लॉन्च किया गया है, दैट इज टिल 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक। नाउ few questions with related to the new parliament building, like who have designed the new parliament? तो विमल पटेल इज द डिजाइनर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पे लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा के 888 कर दी गई है, राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी 384, और इसको बनाने वाली मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो किया है वो कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये टाटा कंपनी ने नए जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन किया है। और ये इसका इनॉग्रेशन कब किया गया है? 28 मई को इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस दिन क्या था कि वीर सावरकर जी का बर्थडे था, इसी दिन इसलिए इसका इनॉग्रेशन किया गया। एक और चीज था न्यूज में कि सैंगोल जो है वो पार्लियामेंट में इनॉग्रेशन के टाइम पे मोदी जी उसका वो भी वहां पे लगाया गया है। तो उसके हेड पे एक तो है कि नंदी जो गाय है उसका स्टैचू है, दूसरा ये सैंगोल रिप्रेजेंट क्या करता है? ये इंडियन कल्चर में सैंगोल रिप्रेजेंट्स जस्टिस। नाउ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन। तो साइक्लोन बिपरजॉय इसका नामकरण किसने किया? हु हैव नेम्ड द साइक्लोन बिपरजॉय? बांग्लादेश ने किया था। साइक्लोन बिपरजॉय आया कहाँ पे था? अरेबियन सी में आया था। साइक्लोन मोचा ये म्यांमार में आया था एंड दिस वाज नेम्ड बाय एमएन। साइक्लोन मैंडस दिस वाज इन अंडमान निकोबार को ये अफेक्ट किया था, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन सितरंग ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन असानी ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आया था। अब एक और क्वेश्चन है कि जब कोई अभी इसके बाद कोई नया साइक्लोन आएगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? दैट विल बी तेज, और दिस नेम हैज बीन प्रपोज्ड बाय इंडिया। ये कहीं पे भी ये साइक्लोन आएगा इंडियन ओशन बेसिन के आसपास तो उसका नाम तेज रखा जाएगा। जो दिल्ली का राजपथ है दैट हैज बीन रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनेगा वो अब सूरत में हो जाएगा। ये सूरत गुजरात सूरत में बनेगा। आईआईटी दिल्ली का फॉरेन कैंपस कहाँ पे खोला जाएगा? अबू धाबी यूएई में। हिंदू सम्मेलन फॉर 2023 हैज बीन हेल्ड एट बैंकॉक। और जब हिंदी सम्मेलन की बात करेगा तो वो फिजी में हुआ है। हिंदू सम्मेलन बैंकॉक और हिंदी सम्मेलन फिजी। तो याद करने के लिए हिंदी के लास्ट में आई आ रहा है, फिजी में भी आई आ रहा है, तो आई को मैच कर लेंगे अगर कंफ्यूजन होगा तो। G20 के अंदर स्टार्टअप 20 मीटिंग हैज बीन हेल्ड कहाँ पे? गुरुग्राम में हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा। जो 37th नेशनल गेम होगा वो कहाँ पे होगा? दैट विल बी इन गोवा, और इसका मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है मोगा। अभी which company has granted $1 million grant to IIT मद्रास? तो ये गूगल ने IIT मद्रास को $1 मिलियन ग्रांट के तौर पे देने का फैसला लिया है। जो G20 की क्राइम एंड सिक्योरिटी की मीटिंग है दैट हैज बीन आल्सो हेल्ड इन गुरुग्राम। G20 का और एक मीटिंग कल्चर वाला है, तो उसकी कल्चर की मीटिंग 3 जगह हुई है। खजुराहो में, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा ओडिशा में हुआ है एंड थर्ड वाज इन हम्पी।
हम्पी कर्नाटका में एंड फोर्थ विल बी इन वाराणसी। एक और चीज है कि G20 का जो लोगो है उसमें लोटस के 7 पेटल्स हैं। दो 7 पेटल्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? 7 petals are representing the 7 continents of the world. Sorry. Now National Technology Day is celebrated on 11th May. Right to walk ये कौन सा स्टेट लेके आया है? पंजाब केम अप विद राइट टू वॉक। जो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होगा IOC, वो उसका होस्ट कंट्री है बांग्लादेश। बैंक क्लिनिक कौन लेके आया है? तो बैंक क्लिनिक हैज बीन ब्रॉट बाय ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा। अभी रिसेंट में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दैट हैज बीन गिवन श्री योगी आदित्यनाथ जी। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये किसे डिक्लेयर किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी हैं, फुटबॉल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। ही हैज बीन चूजन एज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। डिजिटल दुकान ये लेके आया है एक्सिस बैंक वीजा के साथ, डिजिटल दुकान। स्प्रिंग फिएस्टा हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय, दिस वाज फर्स्ट स्प्रिंग फिएस्टा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अभी हाल ही में नाटो का 21वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड। नाटो को और क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। SCO का 9th मेंबर बना है ईरान। लेटेस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इजिप्ट बना है। अभी में GI रजिस्ट्री डेटा डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली। तो स्टेट विद मोस्ट GI टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कौन था? केरला था। ये GI रजिस्ट्री का डेटा है कि 2022-23 में स्टेट विद मोस्ट GI टैक्स केरला, मतलब 2022-23 में केरला ने सबसे ज्यादा GI टैग ऑब्टेन किया। एक और GI टैग इम्पोर्टेंट है, मिर्चा राइस, इसको मिला है, दिस बिलोंग्स टू बिहार स्टेट। नाउ केन्या का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है ताइफा 1। तो ताइफा 1 इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ केन्या। इस बजट में 2023-24 के बजट में मिलेट्स हैज बीन नेम्ड एज श्री अन्न। और एक सेंटर भी एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक सेंटर खोला जा रहा है मिलेट्स के रिसर्च के लिए, दैट इज इन हैदराबाद। नाउ नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ पे खुला है? वो गुवाहाटी में खुला है। तो ये याद करना आसान है, नॉर्थ ईस्ट का IIT भी कहाँ पे है? गुवाहाटी में ही है। एम्स भी गुवाहाटी में ही खुला। यूरिया गोल्ड क्यों लाया गया है? फॉर टैकलिंग द सल्फर डिफिशियंसी, सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया गोल्ड लाया गया है, जिसमें यूरिया को पॉलिश किया गया है सल्फर से। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया था बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, एंड द हेड ऑफ दैट कमेटी, दैट इज चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, इज राजेश गोपाल। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उद्योग रत्न अवार्ड दिया है किसे? द लीजेंड रतन टाटा जी को। ही इज एक्चुअली अ लीजेंड पर्सन। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया है? राज सुब्रमण्यम जी गॉट द प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? डेविड एच चिपरफील्ड को। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज 2023, ये बहुत बड़ा सा नाम है, राधा कृष्ण राव, याद कर लीजिए, के राधा कृष्ण राव। एशिया की पहली कंट्री जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया वो चाइना थी। और अगर पूछे कि वर्ल्ड की पहली कंट्री टू हैव अ हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन इज जर्मनी। ये ज्यूस मिशन है दैट हैज बीन ब्रॉट अप बाय, ये लाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा। दिस विल बी यूज्ड फॉर जुपिटर ऑब्जर्वेशन। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट ये भी कौन लाया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन दैट विल स्टार्ट इन दिसंबर 2023, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट उसका नामकरण हो गया है कि दैट विल बी नेम्ड एज वंदे मेट्रो।